Hello students, welcome to today's class where we will learn more about electrolysis. Okay, let me take you to the whiteboard. So we are going to learn about electrolysis. We have seen the theory of electrolytic dissociation or mechanism of electrolysis. So Avante Arrhenius in 1887. Following are the important points of the ionic theory. An electrolyte is a substance which is like either aqueous or molten state. They produce ions. So in the aqueous state or the molten state they produce ions. Ions are basically of two types: the cations, which are positively charged, and the anions, which are negatively charged. Now the movement of the ions in the electrolyte is responsible for the flow of current. So ions are responsible for flow of current. Now, the ions, like they increase the conductivity. So more the concentration of ions, more will be the conductivity. The extent to which an electrolyte dissociate is known as the degree of dissociation. Degree of dissociation. So as we have seen, strong acid, they dissociate more, and therefore their aqueous solution makes a good electrolyte, a strong electrolyte. Now, the cations and anions formed during the dissociation continuously unite to form neutral molecules. Thus, an equilibrium is set up between the dissociating ions and the neutral molecules. So here we have talked about equilibrium. The fifth point says the electrolyte is electrically neutral. It means the total number of the positive charge will always be equal to the total number of negative charge. So this was the theory of electrolysis. Moving to the characteristics. Now we also have characteristics of electrolysis. Now let us see into that. The first point over here says when an electric current is passed through the electrolyte, the cation, that is the positively charged ion, it might be either a metal ion or a hydrogen ion, migrates towards the cathode, and anion, which is basically a non-metal, moves towards the anode. So very simple, cation to cathode, and similarly anion to anode. So this is one point. Now, second point. It says the number of electron accepted, by an anode will be equal to the number of electrons donated by the cathode. So that is very important. देखो एनोड क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, और कैथोड क्या करेगा, वो डोनेट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को. अगर हम बात करते हैं एनोड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए तो कैथोड भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, न ज्यादा न कम. थर्ड, the preferential discharge of ion depends upon the position of the electrochemical series and the concentration of ion. So concentration of ions पे depend करेगा और series पे. ये series क्या है? So we are going to look into this later on. तब मैं आपको समझाता हूँ. Fourth point, the product of electrolysis are formed at cathode and anode for a simple reason, that is the exchange of electrons. हमने देखा ना, accept और donate कर रहे electrons, तो वहां पे ही होगा ना. Now the neutral atoms of the metals and hydrogen are liberated at cathode. So cathode पे क्या liberate होगा, या तो metal होगा, और metal नहीं है तो hydrogen gas होगा. Next, the neutral, that is point number 6 I think in your textbook.
Neutral non-metals are liberated at anode. That is the reason that non-metals are called electronegative elements. So anode पे कौन से liberate होंगे भाई? Non-metals. Of course ये हमें समझ में आ रहा है क्योंकि कैश आयन हम देखो मैं बताऊं तुम्हें कैश आयन जो होता है या तो वो मेटल का आयन होगा या नहीं हुआ तो हाइड्रोजन का आयन होगा जबकि एनायन सारे ही नॉन मेटल के आयन्स होंगे राइट सो दिस इज इट नाउ कमिंग टू द सेवेंथ पॉइंट द फोर्थ हैज बीन इंक्लूडेड ये फिफ्थ था देन सिक्स्थ एंड सेवेंथ at no stage the electrons flow through the electrolyte. The cathode donates the electron to the cation and anodes accept the electrons from the anion. The flow of so-called electric current through the electrolyte is basically due to the migration of discharged cations and anions. देखिए ये बहुत सिंपल है अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये भी एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है मेरे पास इन दोनों को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया so this is obviously negative and this one is positive. ये CuSO4 will dissociate to form Cu2 plus and SO4 2 minus. Cu2 plus किसकी तरफ माइग्रेट करेगा अब आप बताओ क्योंकि ये प्लस है तो माइनस की तरफ जाएगा मतलब ये हमारा कैथोड है अब यहाँ पे जाने के बाद में Cu2 प्लस इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और वो बन जाएगा कॉपर का मेटल और इसी पे डिपॉजिट होता जाएगा ये SO4 इसके पास जाएगा और यहाँ से ये Cu को लेकर आएगा और Cu जो लाएगा वो ऐसे ही नहीं लेकर आएगा Cu को बोलेगा कि भाई आपको Cu2 प्लस बनकर आना पड़ेगा तो उसके लिए कॉपर क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा और खुद Cu2 प्लस बन जाएगा तब वो इसके साथ वापस जुड़ जाएगा और CuSO4 बनेगा सो ये हम आगे भी डिटेल में देखने वाले हैं लेट अस सी फर्स्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज what is electrochemical series depending on the ease with which the element lose or gain electrons to form ions they are arranged in a vertical column and this is known as electrochemical series let us see the electrochemical so now here you can see the electrochemical series now we have metal reactivity series इसके जैसा ही है हमारे पास में electrochemical series ये electrochemical series में हम देखेंगे so discharge with maximum difficulty and cations are discharged at the cathode by gaining of electron so कौन सा हमारा easily discharge होएगा तो देखो जितना less reactive metal है अगर मैं आपको बताऊं ठीक है it is very difficult to get discharge of potassium but it is easiest to get discharge of the silver okay gold is not included in your text so we don't have to do that so जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्चार्ज करवाना उतना ही मुश्किल है ऑब्वियसली क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेगा सो जल्दी से एक्सेप्ट कौन कर लेगा जो कम रिएक्टिव है फटाफट एक्सेप्ट करेगा और नोबल मेटल्स हैं ये जैसे सिल्वर हो गया गोल्ड हो गया और वो फटाफट सेटल हो जाएगा so this is what we have to keep in mind now looking further if I say the नॉन मेटल्स वालों का जो सीरीज होगा उसकी बात करें हम तो नॉन मेटल्स में आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे सो दैट इट इज बीन गिवन SO4 2 minus NO3 minus 1 fluorine chlorine bromine iodine and OH minus so which is easy to get discharged the OH minus is easy to get discharged and SO4 2 minus is difficult to get discharged so this is how it works. Now we come to the point selective discharge of ions. When an electrolyte contains two or more than two cation or anion, which will be discharging at cathode and anode. So when we have two or more than two, either cations or anions. So which is going to get discharged at cathode? There will be a race. समझ में आ रहा है आप लोगों को? So at cathode or at anode. So there is a race. अगर जैसे मैं बोलूँ आपके क्लास में दो बच्चे हैं पहले एक ही बच्चा था जो बहुत अच्छा पढ़ रहा था तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट रैंक लेके आएगा he was decided but now two of them come intelligent so who one is going to get the first rank there is a competition
तो कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा कि किसका फर्स्ट रैंक आएगा? ऑब्वियसली जो ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, जो अच्छे से कर रहा है, बट हियर देयर आर अदर फैक्टर्स। सो पहला है रिलेटिव पोजीशन ऑफ cation and anion in the electrochemical सीरीज। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था जो जितना नीचे था वो उतना फटाफट डिस्चार्ज हो रहा था। सो दैट इज वन। अब इससे भी इंपॉर्टेंट है द कंसंट्रेशन। ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा आयंस का, तो वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एनोड। ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। नाउ रिलेटिव पोजीशन वो हम पहले ही देख चुके हैं। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ रिलेटिव पोजीशन का, तुम मुझे बताओ। इन द रिलेटिव पोजीशन वी सॉ आयरन एंड कॉपर। ठीक है, दो था हमारे पास, एक था आयरन और सो हम मान लेते हैं हमारे पास Fe2+ और Cu2+, ये दो आयोन्स हैं। So which one is going to get discharged? Obviously Cu2+। अब ऐसा क्यों हुआ? Okay, I'll show you why. Come to this, have a look. तो देखो आयरन यहाँ पर था और कॉपर यहाँ पर है, तो जितना हम नीचे आएंगे उतना उसका ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए कॉपर डिस्चार्ज होगा। तो अब आप समझ गए ये। इसी तरह से चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास में है NO3-1 और OH-1, तो किसका डिस्चार्ज पहले होगा? बताइए आप। ऑब्वियसली यू आर राइट, OH- का पहले होगा क्योंकि उसका रिलेटिव पोजीशन नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड। नाउ कंसंट्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब भी हम कोई आयंस मतलब कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो साथ में पानी जरूर होता है अंदर, राइट? सो व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूट, अगर हम लेते हैं एक एग्जांपल NaCl का, ठीक है, we can take dilute solution and we can take concentrated solution. So dilute solution में Na+, Cl-, H+, OH-, ये सारे बनेंगे क्योंकि हमने इसको पानी में डिसॉल्व करके डाला है। So what all ions will be having? Na+, Cl-, H+ and OH-, इतने आयंस हैं हमारे पास। अब देखो कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा? अगर हम ले लेते हैं डाइल्यूट, वी आर हैविंग अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, सो ये होगा क्योंकि इसमें H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और दूसरा OH- होगा क्योंकि वो वैसे भी पोजीशन भी उसका लो है और उसका डिस्चार्ज होने का रीजन दूसरा भी क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। नाउ इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट, नाउ आई सिलेक्ट कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड में H+ डिस्चार्ज नहीं होगा, सोडियम डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, और यहाँ पे OH- नहीं होगा और Cl- डिस्चार्ज होगा। बोलो समझ में आ रहा है? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उस पे डिपेंड करेगा। ओके, चलिए आगे जाते हैं। द नेचर ऑफ एनोड। नाउ एनोड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, अटैकेबल एंड नॉन अटैकेबल। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक है नॉन अटैकेबल। नॉन अटैकेबल मतलब इनर्ट है वो, और एक होता है अटैकेबल। अब अटैकेबल मतलब एक्टिव कहलाएगा वो, तो हम ये वर्ड से ही उसको एक्टिव और इनर्ट ऐसे ही देखेंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉपर सल्फेट का डिस्चार्ज। ठीक है, सो वी आर हियर टू सिलेक्ट एनोड एंड कैथोड, तो हमने एनोड और कैथोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, एक में हमने रखा है, देखो जो हमारा एनोड है वो कॉपर का है, और एक में हमने रखा है कार्बन का, मतलब ग्रेफाइट का रखा हुआ है, या फिर हम ले लेते हैं प्लेटिनम का।
चलो आपकी बुक में प्लैटिनम दिया, प्लैटिनम ले लेते हैं, और ये वाला दोनों में कैथोड तो दोनों का कॉपर ही है, ठीक है। अंदर हमने सॉल्यूशन भी भर दिया है, कौन सा सॉल्यूशन है अंदर, CuSO4 कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन है। नाउ व्हाट विल हैपन, चलो लेट अस फर्स्ट कनेक्ट, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इसको हम। देखो ये जो है वो हमारा एनोड है, एनोड मतलब जहां पर एनायन डिस्चार्ज होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आ गया ये समझ में, चलिए। सो ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ अंदर हमने क्या डाला है, CuSO4, CuSO4, ऑब्वियसली CuSO4 अंदर टूटेगा और Cu प्लस और SO4 2 माइनस बना देगा। और हमने पानी भी डाला है H2O, दैट विल आल्सो गेट डिसोसिएटेड, H प्लस और OH माइनस। अब देखो ये जो प्लस वाला है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ पहुंच जाएगा, है ना, और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ, या सॉरी यहाँ पे हमें इसको भेजने का था इधर, राइट। वैसे यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये वही होगा। अब चलो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या है। प्लेटिनम इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये कैसा है, इनर्ट है। और ये जो कॉपर है वो कैसा है, एक्टिव है। अब रोल देखो, जब भी SO4 2 माइनस यहाँ तक जाएगा तो वो उसको एक कॉपर दे देगा, बोले यू टेक 1 कॉपर। पर यहीं पर ये SO4 2 माइनस जब इसके पास जाएगा तो बोलेगा मेरे पास तो कॉपर है ही नहीं, आई कैन नॉट गिव यू एनी कॉपर। तो SO4 2 माइनस अब वहां पे जाने का ही बंद कर देगा, तो अब इधर कौन पहुंचेगा, तो ये जो था OH माइनस आयन वो यहाँ पहुंचेगा और वहां से वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके OH माइनस जो है वो H2O और H2 हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉपर नहीं था अवेलेबल, इसलिए OH माइनस यहाँ पे जा रहा है। So this is again, you know, depending upon the nature of anode, attackable, non-attackable, ठीक है ना। तो अटैकेबल मतलब एक्टिव, और नॉन अटैकेबल जैसे प्लैटिनम जैसा जो है इनर्ट। आफ्टर दिस ऑल थियरी हमको जो पढ़ना है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ acidulated water, that is water and dilute sulfuric acid, electrolysis of copper sulfate solution, and then applications, and then metal plating as well as electro refining of metal, और हम पढ़ेंगे electrometallurgical process for the extraction of metals by electrolysis। तो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में। So that is all for today, and then I'll forward the next video जिसमें आपको नेक्स्ट पार्ट में